بائی چانس یہ ڈیٹس آ گئیں حادثاتی طور پر نہیں، میں پھر عرض کہیے دیتا ہوں، مہینہ رمضان مبارک کا جو مہینہ سید الشہور ہے، مہینوں کا سردار ہے، اس کے آخری اشرا میں لیلۃ القدر، جس لیلۃ القدر کو حضور نے فرمایا کہ اس کو آخری اشرے میں تلاش کرو، ہم اس کی تلاش میں لگے ہوئے تھے۔ اللہ رب العزت نے آمنہ کے لال حسین کے نانا جان کا فیضان پاکستان عطا فرما دیا، اور یہ بھی اور پھر جمعرات اعمال پیش ہوتے ہیں اللہ کے حضور، شب جمعہ جمعرات کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اعمال پیش ہوتے ہیں، یہ پاکستان ہمیں پیش کر دیا گیا، اور پھر اگلے دن جمعہ تھا، اور جمعہ بھی وہ جس کو جمعۃ الوداع کہتے ہیں۔ اور آپ نے یہ بات ذہن میں رکھنی ہے قبل از گفتگو کہ صرف دو ریاستیں، دو وطن، یہ اسلام کے نام پر ان کی بنیاد رکھی گئی۔ پوری دنیا میں دو وطن ہیں، پوری دنیا میں دو وطن ہیں، دو ریاستیں ہیں جن کی بنیاد اسلام پر رکھی گئی، ایک مدینہ المنورہ ہے اور ایک پاکستان ہے۔ بات آپ کو سمجھ میں آ رہی؟ جب پاکستان منشور میں آیا، نظریات میں آیا، افکار میں آیا، تو اس کے منشور میں یہ بات طے ہوئی، اور یہ نعرہ بھی جو تھوڑے سے بھی ہسٹری سے واقف ہیں، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، تو اس کی لا الہ الا اللہ پر بنیاد جو ہے وہ رکھی گئی۔ یہ بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ کوئی نہیں آ رہی؟ آ رہی ہے سمجھ آپ کو؟ ہاں، یہ اس لیے نہیں بنایا گیا کہ جمہوریت جو ہے پروان چڑھے گی ادھر، تو اس لیے یہ تقسیم ہوئی، ٹھیک ہے، کہ ڈکٹیٹرشپ نہ ہو، بلکہ یہاں پہ ڈکٹیٹرشپ ہوتی رہی ہے، جمہوریت میں پروان انڈیا جو ہے جمہوریت میں ہم سے آگے ہے۔ پتہ چلا یہ مقصد نہیں تھا کہ جمہوریت کے لیے ہم نے یہ علیحدہ وطن جو ہے پاکستان لیا، یا قائد اعظم نے اس کی تجویز دی۔ بات آپ کو سمجھ آ رہی؟ نہ سڑکیں بنانے کے لیے کہ اپنی وکھریاں پکیاں سڑکاں بناواں گے، نہ پلاں واسطے آیا، نہ پارکاں واسطے بنیا۔ گل تو سمجھ آ رہی ہے؟ یہ کس لیے بنا کہ قائد اعظم محمد علی جناح بانی پاکستان نے یہ کہا بس شگاف الفاظ میں، انہوں نے فرمایا کہ ہمیں محض ایک ٹکڑا نہیں چاہیے، ہمیں ایک لیبارٹری چاہیے جس میں ہم اسلام کے اصولوں کو تجربہ کریں گے۔ لیبارٹری کے تجربے ہوتے ہیں، توجہ ہے کہ نہیں؟ ہم اسلامی اصولوں کے تجربہ کریں، اسلامی اصولوں کو اس میں جب ہم آزمائیں، اے مقصد سی مملکت خدا داد پاکستان کے حاصل، اور جس میں اولیاء کرام کا بھی ساتھ تھا، آپ کو پتہ ہی ہے اس بات کا، اولیاء کرام کا بھی فیضان تھا۔ ایک جھلک دے دینا نا، پھر مسئلہ لے آنا۔ اولیاء کا بھی فیضان ہے پاکستان، کیسے؟ اس کی ایک بات، بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح علیہ الرحمہ نے واشگاف الفاظ میں کہا لوگوں کو کہ اب مجھے حق الیقین ہے کہ پاکستان بن کر رہے گا۔ کہا کہ آپ کو یقین کیسے ہے پاکستان بن کے رہے گا؟ ابھی تو تحریک چل رہی، تحریکیں چلتی ہیں، کامیاب بھی ہوتی ہیں، زوال پذیر بھی ہوتی ہیں، عروج پہ بھی جاتی ہیں، آپ کیسے یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان بنے گا؟ انہوں نے کہا کیونکہ محدث علی پوری پیر جماعت علی شاہ نے کہہ دیا پاکستان بنے گا، پاکستان بنے گا۔ اور پھر پاکستان اس وقت بنا، اب میں مولوی کا نام نہیں لینا چاہتا، جنہیں تھوڑا بھی مطالعہ کو پتا ہے، جنہیں کیا نعوذ باللہ، جس کا نام محمد اور علی ہے، ان کو ایک طریقے کا بھی اختیار نہیں۔ جب یہ جملے گردش کر رہے تھے، رب لم یزل نے اس دھرتی کے سینے سے اس شخص کو اٹھا کر پاکستان بنانے میں لگا دیا جس کا نام نہ محمد نہ علی، محمد علی۔ نہیں سمجھ آتی کچھ بھی؟ طریقے کا بھی اختیار نہیں، محمد علی جناح کی ڈیوٹی لگائی تاکہ پتہ چلے کہ محمد علی کے اسم میں جب اتنی پاور ہے تو محمد علی کے جسم میں کتنی پاور ہوگی۔
असली नहीं, नकली है, नकल की, इसमें मोहम्मद की। अली असल नाम मोहम्मद अली जिना का नहीं, नकली है, असली वो है, ये कॉपी है, ओरिजिनल वो है। जब कॉपी नहीं पावर है तो ओरिजिनल नहीं पावर। तो जो है आपकी कोई नहीं है, हमने ड्यूटी होंगी लाई मोहम्मद अली जिना, तो जो है कि नहीं है। हाँ, उन्होंने फिर टोपी भी जना गया भी भाई। चलो दूर का निकल जाएगी तो ना, ये अल्लाह पाक का हम पर एहसान है, ये जो अल्लाह पाक ने हमें मुल्क पाकिस्तान जो मर्जी लोग करते रहे, ये पेन भी फर्क नहीं पैना चाहिए रखना। तुझी नहीं समझ आ रही तो आगे अलफ भी है, काफ भी है, सीन भी है, ते भी है, फेर अलफ है, फेर नून है, यदि पेन भी फर्क नहीं पैना। क्यों? हजरत वासिफ ने फरमा दिया कि पाकिस्तान एक नूर है और नूर को ज़वाल नहीं। असल में हमें कदर इसलिए नहीं, पाकिस्तानियों पाकिस्तान की कदर करो, यकीन मानो, जो मर्जी होता रहो तो नहीं ध्यान देना, पाकिस्तान की कदर करनी। गल तो समझ आ रही कोई नहीं आ रही? पाकिस्तान की करनी बोलो, फिर बोलो की करनी, कदर करनी। सानू कदर पता क्यों नहीं? एक मिसाल देना तो फिर अगे चलने। एक बड़ा मालदार शख्स था, तो उसका एक इकलौता बेटा ही था, अयाशियों में पड़ गया। देखो ये जो वतन है ना, ये भी नेमत है, औलाद भी नेमत है। दुआ करो अल्लाह ताला सब की औलाद को सिराते मुस्तकीम पर चलाए रखे, हमारे लिए बाइस सदका जारिया बनाए रखे। क्योंकि बुजुर्गों से हमने सुना कि जिनकी औलाद ने एक मिल जाए तो दुनिया की जन्नत है, ना हो तो फिर तो हम सारे पता ही है। तो दुआ करें, ये अगर मुल्क नेमत है, वतन नेमत है, तो औलाद भी की है नेमत, तो वो भी ठीक निकले। वो क्या निकले जी? ठीक निकले। अब वो शख्स का बच्चा अयाश, आवारागर्द, पैसों का ज़िया करे, असराफ, बुरी सोबतें लगाए जाए। अब उसका आखिरी वक्त था उस बंदे का, ठीक है, तो उसने उसको पास बुलाया। अब ये उस वक्त की बात है जब एक मजदूर की मजदूरी 1 रुपया हुआ करती थी। उसने पास बुलाया और उसको कहा, देख तू ये असराफ करता है, ये फजूल खर्चियाँ करता है, ना करा कर, ना करा कर ना। वो बात ना जो आया तो उन्होंने आख्या कि मैं ना, मैनू तू 1 रुपया तेरे को चाहिए, 30 रुपया तू उतों लिया है, मेरे पैसे चो नहीं देना, अपने को लिया। उन्हें कहा कि काम है जिन्हें यार दोस्तों को 1000 रुपया खुआया, उन्होंने टुर गया, रुपया चाहिए तो उन्होंने दे छड़िया। साजिद उन्होंने दे छड़िया, रुपया दे दिता, इन्हें लिया के अब्बे को दिता, अब्बे ने फड़ के उन्होंने खूह सुट दिता। अब फिर दूसरे दिन फिर कहता मुझे रुपया चाहिए, वो फिर चला गया, फिर लाया, तीसरे दिन फिर वो जो वावा दिन लिया रहा तो आखिर यार ने भी गए, इन्हें तो रूटीन ही बना ली, इन्हें तो रूटीन। फिर जो बुआ करके आए किसी तो बच्चे अंदरों ही आवाज ला दे, अब्बा जी घर नहीं है। गल समझ आ रही है ना? है वो जो आया उन्हें फिर कहा कि अब्बे ने जिंदगी एक काम किया है, खाते पीते रहे हैं, रुपया देना है, तो उन्हें की किया, उन्हें मिस्त्रियां बगैर दिहाड़ी लाने का प्रोग्राम करता। तो मैं तुहानू दस्सिया दिहाड़ी उदों सी 1 रुपया। हुण जिन्हें कभी जिंदगी काम ना किया होवे, उन की पता मेहनत की शायद गाड़ी किवें चुकनी, मसाला किवें लाना, इट्टां किवें सुट्टनियां ने। तवज्जो है? अच्छा, वो मजदूरी उन्हें शुरू की थी। शाम पई, रुपया लिया ना तो अब्बे ने लिया के दिता। अब्बे ने जो रुपया लिया तो अब्बे ने सुट दिता फिर खूह के रूटीन के मुताबिक। हूँ चीकिया, अब्बा जी तो मुअक्कल नहीं, पागल हो गए हो, रुपया सुट दिता खूह च। क्या पुत्र इन्ने दिन तो रुपया दे रहे हैं, कभी चीकिया तो नहीं, बोलिया नहीं, अज बोलिया, वजह की? कहता अगों मैं कितों लिया के देना था, अज मैं आम मेहनत की है, मजदूरी की है, टेलर है, खून पसीना एक किया है। क्या है तो तेन समझाना चाहना कि जिवें तू रुपया खून पसीने की कमाई नाल कमाया है, तेरे प्यो ने एक रुपया इंज ही कमाया है, तां ही तो कहना चाहना। हूँ पता लगे ही जो है थोड़ी कोई नहीं। हूँ मैं मिसाल देने की जरूरत, लखां कुर्बानियां हुई मुल्क पाकिस्तान जो बनया। सानू कदर नहीं, कदर पूछो जो साडे फोर फादर्स ने, जो आबाओ अजदाद ने, जो साडे परदादे दादे लकड़ दादे ने, उन्होंने तो पूछो कि उन्होंने किनिया कुर्बानियां, न सिर्फ कुर्बानियां दितियां बल्कि खुद कुर्बान भी हो गए, खुद कुर्बान भी हो गए। बाबे सारे को पता होना है, ठीक है ना? एक तहकीक के मुताबिक जब ये ट्रेन चली, अब लाहौर की तरफ लोग आने लगे, ठीक है ना, तो तकरीबन 6 लाख बंदियां का की होया कतल होया पूरी इस वारदात दे विच। एक तहकीक है, कुछ कहते हैं ट्रेन ते 40,000 सन, माना 40 नहीं हो, और माना 1 भी हो, कुरान पढ़, एक
इंसान का कतल, पूरी इंसानियत का कतल है। इतने लखां दे विच कतल होए। तवज्जो है, जेहड़ी ट्रेन दिल्ली तो चली लाहौर, उस ट्रेन के हर डब्बे तो, अगर तुहानूं थोड़ी भी पाकिस्तान की हिस्ट्री का पता है, खून बह रहा सी। खून हर ट्रेन के डब्बे चो खून बह, तो दिल्ली से लेकर लाहौर तक कोई जगह ऐसी नहीं थी जहां पर खून ना हो। 7,000 खवातीन ने अपनी इस्मत, अपनी इफ्फत, अपनी पाक दामनी बचाने के लिए दरियाओं और नहरों में छलांग लगाकर शहादत का जाम नोश कर लिया, अपनी इज्जत तार नहीं होने दी। तो जो है तो कोई नहीं है, समझ आ रही है। और जलंधर में कुछ हिंदुओं ने कुछ खवातीन को घेरे में लिया और कहा कि तुम इस्लामी रियासत बनाना चाहती हो, उनके नारे लगा रहे हो, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। उन्होंने माअज़ल्लाह उनकी इस्मत दरी की, सबके सामने उनके दामन को तार तार किया। एनिया कुर्बानियां भाजी हुई ने तां जाके मुल्के पाकिस्तान सानू लभदा है। ऐसी है ना जी, कदर करो, सानू कदर तां नहीं। फिर मिसाल जेन च रखो, जदों बाबे यार आप कमाया होंदा ना, एक एक आप मुल्क हासिल कीता होंदा, ते फिर तो सानू होंदी, चूंकि साडे वड्डियां ने कर छड्डिया, लेकिन उन्हां दी कुर्बानियां नू याद करके इहदी कदर ते कर सकने हैं कि नहीं कर सकते? वो बात समझ आ रही है आपको? और लोग पीछे नहीं हटे। 1 लाख बंदा तो अफगानिस्तान बॉर्डर पे गया, उन्होंने एंटर नहीं होने दिया, वो वापस आएगा। हुण तुसीं हिसाब लाओ, इत्थों बंदा कोई पैदल चला जाए इस्लामाबाद, अगों पता लगे जिहदे ले जाना तो बूहे बंद है। हालांकि देखो मौजूदा हालात होटल भी ने, रेस्टोरेंट भी ने, गेस्ट हाउस भी ने, पार्क भी ने, लारी अड्डे भी ने, बतेरे थावां ने वक्त गुजारन वास्ते। इही गल है। हुण तुसीं कॉन्सेप्ट करो कि हिंदुस्तान तो 1 लाख बंदा चलिया है, पैदल चलिया है, ते गया अफगानिस्तान बॉर्डर से, अगों बूहा बंद लगा है, तो मोया मार गया बचना वापस। तो जो है आपको, तो कुर्बानियां आप देख रहे हैं ना कैसी दी हैं, कुर्बानियां देख रहे हैं ना। तो ये कुर्बानियां क्यों दी? कि मुसलमानों में अल्लाह ताला ने ईमान का जज्बा रखा है। ईमान का क्या रखा है? जज्बा। और जंगें जो हैं वो हथियारों से नहीं, जज्बों से जीती जाती हैं। सुभान अल्लाह जी, करो बड़ा जज्बा है जी, मैं सुभान अल्लाह का जज्बा ही नहीं तो मैं उन्हें देख के सुभान अल्लाह ही कहांगा, मेरे से तो जज्बा है ना। तो जो है कोई नहीं है थोड़ी, अल्लाह अकबर कबीरा। हथियारों से देखो ना, हमेशा इस्लाम किल्लत का शिकार रहा, मुसलमान किल्लत के शिकार रहे, लेकिन डोमिनेट रहे, गालिब रहे, विनिंग पॉइंट पे रहे, जीतते रहे। वजह की ये हथियार नहीं सी। तो जो है थोड़ी कोई नहीं है। 1965 की जंग जब लगने लगी ना, वो भी खादशाना नहीं सीखा लगे, तो दौरे हुकूमत था अयूब का, किदा जी अयूब का। उन्हें मुख्तसर जो रेडियो ते आके एक पैगाम जारी किया है 2 मिनट का, क्योंकि उत्थे उन्होंने प्लान किया हिंदुआ ने कि हम सुबह का नाश्ता जिमखाना क्लब में करेंगे जाके। और है ना, नहीं पता कि कोई नहीं है ना पता, चलो शुक्र अल्लाह ताला, कुछ ना कुछ पता रखो जरा, नहीं तो अलग पता जाएगा। ये जनाब उन्होंने क्या जी, नाश्ता करेंगे जिमखाना क्लब पे। अयूब खान ने कहा ये हिंदू देखो कहते हैं, अलान रेडियो पाकिस्तान पे हिंदू कहते हैं कि हम नाश्ता लाहौर के होटल में करेंगे, इनको पता नहीं ये किन से लड़ने आ रहे हैं, जिनका अल्लाह रब है, जिनके मुल्क की बुनियाद ला इलाहा इल्लल्लाह है, जिनका पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह है, और जिनकी किताब कुरान है। तो क्या मुसलमानों लड़ो इनसे। बस ऐलान दी देर, मुख्तसर ऐलान, सवेरे बंदा की, बुढ़ी की, बच्चा की, किसी ने जनाब कुदाल चुकी, किसी ने बेलचा चुकिया, किसी ने कुल्हाड़ा चुकिया, किसी ने डंडा चुकिया, लाला लाला। और इंसानी तारीख में पहली मर्तबा चश्मे फलक ने देखा कि पाकिस्तानियों ने बम बांध के अपने सीनों पे उन्होंने टैंकर दे के लेट गए। तो जो है तो कोई नहीं है, तारीख तो पढ़ो पाकिस्तान की, हमें थोड़ी लग गया है, समझ आई। और फिर ऐलान हुआ कि गजाई जो कीमत बढ़ गई है, सारे जंग लगी हुए तो साढ़े मुल्क तो पहले वो शॉर्टेज होती थी, जिथे लगी होती है नहीं होती। हाँ माशाल्लाह, एडे असी सेंसिटिव हाँ, हर असर कबूल करने फटाफट। जिथे लगी है उथे नहीं लगी, जिथे नहीं लगी उथे कमाल दी लगी है, ठीक है ना। हाँ तो की होया कि वो भी गजाई किल्लत हो गई, ऐलान होया फौजी नौजवान लड़ते पे ने, तो जिहदे कोल जो है वो लियावे। वो जनाब किसी ने 5 किलो का थैला फड़िया आटे का, किसी ने 10 किलो का फड़िया आ,
ਉਹ ਬੁੱਢੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਟੇ ਝੋਲੀਆਂ ਚ ਲੈ ਆਈਆਂ, ਬੱਚੇ ਬੁੱਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਏ। ਯਾਰ ਅੱਲਾ ਭਲਾ ਕਰੇ ਤੁਹਾਡੇ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਛੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਆ ਵਾ। ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਕ ਹੋਣਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਬੁੱਕਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ, ਇਸ ਲਈ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਕਹਿ ਲਓ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਬੁੱਕਾਂ ਚ ਫੜੇ ਨੇ ਆਟੇ, ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ, ਝੋਲੀਆਂ ਚ ਪਾਏ ਨੇ ਆਟੇ, ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ। ਉਹ ਝੋਲੀ ਚ ਆਟਾ ਪਾ ਕੇ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾਂਦਾ। ਕੈਸਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਲੜਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਕਮਾਨੀ ਨਹੀਂ, ਅਜੇ ਨਹੀਂ, ਠਹਿਰੋ, ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਉੱਚੀ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਫੌਜੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ, ਫੌਜ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਮੰਨੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਨਾ, नहीं समझ आ रही। मैं और फौज की गल कर रही, माशाल्लाह की सो गए ने हैं। फौज अपनी टैट है, अब दुनिया की मनी तरीन टैट है। हाँ हाँ बड़ी फौज दुनिया की मनी तरीन फौज नहीं है, जो समझ आती नहीं। सदर बुश का पता नहीं, वो भी नहीं पता। वो अमेरिका का प्रेसिडेंट कितों निकल गए थे, सीधा जुमा पढ़ने, फिर टुर के आया कर जुमा पढ़न। सदर बुश नामी ग्रामी प्रेसिडेंट USA, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, उन्हें क्या कि मेरा असला होवे, पाकिस्तान की फौज होवे, मैं 24 घंटिया ते पूरी दुनिया ते हुक्मरानी कर लवां। अल्लाह पाक ने जिहड़ी शै सानूं दित्ती टैट है, वो विचों ढिल्ली हो जाती, कि वजह तो वखरी गल है। दित्ती जिहड़ी शै वे वो गल आ रही समझ। और जवान शहीद होए ना, वो जख्मी होए ते हुण खून दा ऐलान जदों होया ते हस्पतालों के बाहर जिहड़े 4 हस्पताल सन लैना लग गई। उस्ताद जी हिस्ट्री पढ़ के देखो, सरिंजां मुक गई, हालात खत्म हो गए। तो जो है हूँ फ्रिज तो है नहीं सन कि बोतल लैके तो उन्होंने स्टोर कर लिता जाए। उन्होंने बंदियां के नाम पता लिखे, उन्होंने कहा हूँ तो घर जाओ, लोड़ पई तुहानूं घरों लै आवांगे। गल को समझ आ रही नहीं? कुर्बानी बिल्कुल नहीं समझ आ रही है। जज्बा की सी जज्बा, तो हथियारों से नहीं लड़ा जाता, किससे लड़ा जाता? बोलो बोलो। हाँ तो फिर देखो 1965 की जंग च मक्कू ठप्या सी नहीं ठप्या? बोलो ना, कमाल हो गई ਤੁਹਾਡੀ ਦੀ ਗੱਲ है। ते आजादी नेमत है भाजी, एडी जान जोखा च पा के साडे वड्डियां ने साडी झोली च पा दी। आजादी नेमत है। बोलो बोलो की आजादी एक नेमत है। आजादी की है नेमत है। इस नेमत का तकाजा की है? हुण की अज बाजे बजाने ने, मौसीकियां सुननियां ने, रक्स होने ने, नाच गाने होने ने? नहीं, की होना है? बाजा नहीं बजाना, शुक्र का सजदा बजा लाना है। बाजा नहीं बजाना, शुक्र का सजदा बजा लाना है। क्योंकि रब फरमाता है इन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, तुम मेरी दी की नेमत पे शुक्र अदा करो, मैं नेमत बता देंगा। जे एक आजादी पे शुक्र मनावेगा, हर पास आजादी हो जाएगी। आजादी की नेमत है, पूछो फिलिस्तीन के मुसलमानों को। आजादी क्या नेमत है, पूछो गजा के मुसलमानों को, चचीनिया के मुसलमानों को, बसीनिया के मुसलमानों को पूछो आजादी की शय है। मकबूजा कश्मीर के मुसलमानों से पूछो जो आज भी गुलामी की जिंदगी बसर कर रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है, नहीं तो वजह थोड़ी अल्लाह का शुक्र है। ए तरह आया हूँ देखो ना तुसी, अल्लाह पाक ने फिर मुल्क भी सानू कमाल दा अता फरमाया। ये जो है ना, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद व अला सय्यिदना मुहम्मद मुबारक वसल्लम अलैहि। दुनिया जो है ना, दुनिया पे आप नजर डालें तो 3 हिस्से हैं, 2 हिस्से पानी है, 1 हिस्सा खुश्की। तो जो 1 हिस्सा खुश्की है ना, उस खुश्की पे 7 बर्रे आजम है। कितने? 7। उन 7 बर्रे आजमों में से एक बर्रे आजम है एशिया। एक बर्रे आजम क्या है? एशिया। 80 बर्रे आजम एशिया बेचा। 80 बर्रे आजम बोलो बोलो 80 बर्रे आजम एशिया बेचा। ते ए 2/3 हिस्सा रकबा है ना पूरी दुनिया का, 2/3 हिस्सा 2/3 रकबा जो है वो बर्रे आजम एशिया च नहीं सुना। नहीं ठहरो, 60% पूरी दुनिया की आबादी 60% बर्रे आजम एशिया च, सारे रल के 40% कल्ले 60। आती भी समझ कोई नहीं आती भी आ रही तुहानू? नहीं अजे भी नहीं आ रही। मुल्क पाकिस्तान की 25 करोड़ आबादी है, 13 तो 14 करोड़ जवान इत्थे ने। पूरी दुनिया च इन्ने जवान नहीं जिन्ने पाकिस्तान च जवान ने। नहीं नहीं समझ नहीं
नहीं आई ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं समझ नहीं आती जवान होंगे तो पता लगता जवानी की शै है कभी जवान ही नहीं होए तुसीं ਤੁਹਾਨੂੰ पता जवानी की शै है 13-14 करोड़ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਨ ਨੇ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੀ ਜਵਾਨ ਵੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਇਖਤਲਾਫ ਹੈ ਸ਼ੀ ਜਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੀ ਜਵਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਲਕਿ ਇੰਨੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਚਲੋ ਕੰਮਾਂ ਕਰੋ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ हाय हाय मुज़क्कर हो तो ही कहिए मुअन्नस हो तो शी कहिए मुखन्नस हो तो क्या कहिए नहीयों में नशियों में हूँ पता लगा ही की होता है तुहानू ही तो अलावा कोई शायद ही नहीं पता ही बंदे के लिए आता है शी बुढ़ी के लिए आता है जवान है बंदा तो शी जवान होना चाहिए नहीं ही जवान होना चाहिए हाय हाय मनना तो मनो किस्मां नूं कहो तुसीं किहड़ा इत्थे पैसे लाए ने तो जो है मेरी अपनी सोच है ना सोच तो वाला तुहाडे अंदर तुसीं जे कुछ कड्ढना नहीं मैं तो कुछ वाड़ा की ख्याल है हाँ हाँ तो मैं की गल कर रहा था जनाब मुल्क पाकिस्तान की है अल्लाह पाक ने देखो बेशुमार मादनियात तो नवाजिया थर दे लग जाए ना कोला जाओ किसी इंजीनियर मिलो जाके कोला कढ़ देना वो इस्तेमाल च लै हुण इन्नी बिजली बने कि पूरी दुनिया को असीं मुफ्त बिजली दे सकते 24 घंटे साढ़े महल्ले च नहीं आउंदी कोला नहीं ना हथ चेगा है तो जो है तुहाडी कोई नहीं है पूरी दुनिया च नमक की कान देखो खिउड़े दे विच लूणो लूण इंडिया च लूण का भाव पुछो तुहानूं पता लग जाए माशाअल्लाह आज तो कीन सब भी आए हुए हैं तो जो है तुहाडी कोई नहीं है अल्लाह पाक ने इन्ने खजाने नेमतां और फिर पूरी दुनिया च वाहिद मुल्क पाकिस्तान की सरजमीन है जिस जमीन से 2 दफा साल में फसल काश्त हो जाती है और एक बारी होती है जो भी पता करो जाके तो मैं की दसा पाकिस्तान दा समझ आ रही तो और आम हमारे मुल्क के तो आम भी आम नहीं है माशाल्लाह समझो इन्होंने पता हाँ अल्लाह फैन का भी नहीं पता जिन्होंने समझे हमारे मुल्क के आम मैं रही आखा गया मेरी तकरीर हुई उत्थे बारिश थ्रल लवा बंदे भजन नसण इको ही गल जाना शुरू की मैंने कहा आप किधर आप बैठे हुए जो बैठे सन मैं क्या आप आम लोग नहीं आपके आम तो पूरी दुनिया में मशहूर है इतने नारे लगन लग पे तकरीर मेरी हो गई इन्होंने हाँ तो तकरीर खराब करने बैठे हुए हो तो जो है कोई नहीं गल सोच समझ करे ऐसा जुमले नाम करे वहाँ केड़ा कितने बोलना ना बोलना कि नहीं बोलना तुहानू की पता चिट्टा चौसा की है वाइट चौसा की है जी चलो कोई नहीं हाय 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 पूरी दुनिया में मशहूर है हमारे आम पता आपको और गुजरात डिवीजन का जो चौल है ओदा जायका पूरी दुनिया किसी चौल च नहीं पता तो इस गल का ते गुजरात पाकिस्तान च है क्या सुभान अल्लाह तवज्जो है थोड़ी कोई नहीं है हाँ यह गल मैं करा ना परसों मरीद के जाके तो खुश होनी है ना क्योंकि वो भी पट्टी चौलों वाली है इतने गल्लां ना अंब कम आया ना चौल कम आए ने हैं चलो खैर कोई गल नहीं गल समझ आ रही तुहानू किड्डी वड्डी नेमत है तो इहदा शुक्र अदा करना है अगे 5 नमाज़ां पढ़दे हो अज 6 कर देनियां ने भाई ईद वाले खुशी का दिन है ना रूटीन च 5 होंदियां ओ शुक्र वास्ते एक नमाज और पा दी है मुमलकत खुदा दा पाकिस्तान मिली सानू इहदे च पाना चाहिए कि नहीं और पाना चाहिए वो समझ आ रही है आपको नहीं आ रही उन्हें देखो ना कि देखिए बड़ा कुछ है लेकिन एक अलमिया है कि तालीम के मैदान में हम पीछे रह गए अब पूरी दुनिया में 107वें नंबर पे हैं हम देखो साहब लाल तालीम के मैदान में कितने नंबर पे अच्छा तो यह चेक करो देखो 61 इस्लामी ममालिक हैं उन्होंने तकरीबन 503 यूनिवर्सिटियां ने पूरे इस्लामी मुल्कों च कितने इस्लामी मुल्क तकरीबन में है 61 है ये मेरे हिसाब लगा जो मैं ठीक कर रहा है 61 इस्लामी ममालिक में से कितनी यूनिवर्सिटियां 503 कल्ले अमेरिका में 5358 यूनिवर्सिटियां ने है ना तुम देखो कल्ले मुल्क दे विच तो तालीम के मैदान में हम क्या हैं कि शरह खानदगी हमारी 41% है पढ़े लिखे लोग 60% अनपढ़ जाहिल ओके अजी भी नहीं समझ आ रही 45% सिर्फ प्राइमरी पास ही ने नहीं समझ आई अच्छा आगे चले जाने 3 करोड़ बच्चा वो है कि जिन्हें ना स्कूल का मुंह वेख्या ना मदरसे का वो फुटपाथों पे और होटलों में धक्के खा रहे हैं शरह खानदगी चेक कर रहे हो साड़ी है वो चलो तुहानू ये नहीं समझ आई साडे वजीरे तालीम को एक इंटरव्यू च पूछा गया जो मौजूदा वजीरे तालीम है कि मुल्क पाकिस्तान का कौमी फूल केड़ा है उन्होंने यह नहीं सी पता कौमी जानवर केड़ा है उन्होंने यह नहीं सी पता
ये वजीर तालीम है, अगों तालीम का हिसाब आप ला ला हूँ समझ आ गई है ना। मैं 45% इतने करोड़ उतने करोड़ सीधा मरो। वजीर तालीम को कौमी फुल का नहीं पता तो कौमी जानवर का नहीं पता। मुजीब अशरफी ने वो इंटरव्यू वेख्या है क्योंकि ये हिलना मैं दस रहा है। ये गल है, शुक्र है सानू हिलण तो पता लग जाता है, इन्हू कुछ पता कि नहीं पता तो तुम मसलू ही हिली लिया करो, मैं शक पै जाए पता। लेकिन असी अहले नज़र तो नहीं, अहले नज़र को उठना पैना जरूर है, गलत हिलना बिल्कुल नहीं। आने को होश ना हिल जाए तो जो है आपकी। तो शरा खानदगी में बाकी क्या बात है, बाकी क्या बात है। मैं तुहानू वही दस्या ना, देखो ना सब तो वड्डी इजरत दुनिया की इजरत पाकिस्तान है, जो हिंदुस्तान तो सब तो वड्डी इजरत है भी जेन चून रख लो तुसी। हाँ जी हाँ जी, ओदी वजह की दो कौमी नजरिया, दो कौमी नजरिया की है भाई। हिंदुओं का नजरिया और साडा और, उन्होंने खान पीन और साडा खान पीन और, उन्होंने रहन सहन और साडा रहन सहन और, उन्होंने कीता तो ईद और साडा कीता तो ईद और, सब कुछ वखरा वखरा है ना। दो कौमी नजरिया का मतलब है दो कौमों का नजरिया। अच्छा अल्लामा इकबाल दो कौमी नजरिया के हामी थे, तुहानू पता है? पहले दो कौमी नजरिया के हामी नहीं सन अल्लामा इकबाल। पहले तो उन्हें कहा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, उस तो बाद उन्हें ख्याल आया नहीं 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 रंगो नस्ल पर नहीं, खित्ते पर बात नहीं। उन्हें कहा अपनी मिल्लत पर कियास अक़वामे मगरिब से न कर, खास है तरकीब में कौमे रसूल हाशमी। बात आपको समझ में आ रही है? हाँ बात जो सर सैयद ने भी किया सी कि हिंदू और मुस्लिम एक दुल्हन की दो खूबसूरत आंखें हैं। जब उनकी खबासतों का पता चला, उनकी खन्नासियत का पता चला, तो फिर सर सैयद भी कहने से मजबूर हो गया कि ये दुल्हन की दो खूबसूरत आंखें नहीं है, अब पाकिस्तान की आंखें दुल्हन जड़ी कहानी है, एक आंख ही नहीं ठीक और समझ आती भी कोई नहीं आती भी। पहले पता करो जो उस तो बाद जो निखार होया, अब बात समझ आ रही है आपको? नहीं है लग पता देखो ना साढ़े को की सी रब ने कारखाने सन 24-25 उन्होंने जो टुटे भजे सन देते जिन्हें मशीनों से संग लगे सन, बाकी आपको रख ले। तो जो है हूँ कैसा पाकिस्तान चल रहा है, साढ़े सियासतदान वो भी शायद चला रहे हैं जी चिल्ली कभी नहीं। कमाल तो चेक करो ना जरा, चेक कर रहे हो। लेकिन मैं तुहानू क्या बदकिस्मती क्या सानू ठीक नहीं लभी, पाकिस्तान ठीक है। तो जो है आपको के लिए दुआ करो अल्लाह पाक मुल्क पाकिस्तान को हुक्मरान दे, उम्र फारूक जैसा रब्बे लग जाए। यार छोटी गल मैं तुहानू कहना, दो ही वतन ने, दो ही धरतियां ने, दो ही रियासतां ने जिनकी बुनियाद इस्लाम पर हुई कि एक मदीना तैयबा है, एक पाकिस्तान है। कमाल ही कमाल। मदीना च मुहम्मदुर रसूलुल्लाह होगी तो डेली कि ये आप देखें, मैं कह रहा हूँ क्यादत की बात ਉਹਦੇ ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੁਲਕ ਪਾਕਿस्तान ਦੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਚੱਪੇ ਚੱਪੇ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, हिफाजत करनी है, लव करना है। क्यों? आमना के ने फरमाया हुब्बुल वतन मिनल ईमान, वतन से मोहब्बत ईमान का हिस्सा है। सरकार मक्का छड़ के गए ते काबे ने वेख के आप अशबार होए, मतलब कभी ना छड़दा, तू जन्मभूमि है, जाए पैदाइश है, लेकिन रब का आर्डर है, इसलिए आपने इजहार किया। और गल को समझ आ रही तो उनका कोई नहीं आ रही है तो तुम पूछो ना साडे बुजुर्गों को, देखो ना इतने किराए का मकान कोई बदल के जाता है, समान चुकता है, की हाल होता है। मैं तो दुआ करना नीली छत के नाल के अल्लाह सब को अपनी छत अता फरमा, जो किड्डा ओदा अजीब मामला होता है, समान की की कैफियत नोयत होती है, ये ही दस सकता है ना। जो घर बदलता है छड़ के जाता है तो तुम हिसाब लाओ साडे बाबू जदाद वसदे घर बगैर समान तो छड़ के मुल्क पाकिस्तान आ गए ने। कैसी गल चेक कर रहे हो तुम कि कोई नहीं तुम्हें समझ आती गल है, समझ आ रही तुम्हें? ना जमहूरीयत वास्ते बने कि डिक्टेटरशिप ना हो, ना सड़क सुड़कों वास्ते। और तुम मैंने एक गल दसो जरा, अंग्रेज ने ना जेडे उन्होंने कोई प्रॉब्लम नहीं कि असी कुरान पढ़ने उन्होंने आप साढ़े कुरान के अंग्रेजी तर्जमे कर छड़े, पता आपको?
अंग्रेजी तर्जमे उन्होंने साढ़े कुरान नाल कोई मसला नहीं, ध्यान ना सुनना मेरी आखिरी गल, कुरान से उनको कोई मसला नहीं, हमारी नमाज से भी मसला नहीं। अगर हमारी नमाज से मसला हो तो हम मस्जिद की इजाजत ही ना दें, एनओसी ना जारी करें। बरादर अकबर किबला अमर हाज भी सैयद मोहम्मद मुख्तार शाह नईमी अशरफी ने उन्होंने हाल ही में उन्होंने एक दूसरी मस्जिद का भी इफ्तिताह कर दिया। पता लगा कि उधर मस्जिद ना दी, उन्होंने प्रॉब्लम नहीं, कुरान से प्रॉब्लम नहीं, सोमो सलाह से प्रॉब्लम नहीं, उन्होंने बस ए प्रॉब्लम है कि तुहाडी कचहरी विच किते निज़ामे मुस्तफा ना चल जाए, तुहाडियां अदालतां च किते कचहरी ते जेड़ा निज़ामे मुस्तफा ए उन्होंने प्रॉब्लम है, ते जेड़ी उन्होंने प्रॉब्लम है उन्होंने फेस करो ना। ਉਹ ਸਮਝ आ रही है कि नहीं आ रही ਤੁਹਾਨੂੰ? वो आंदे ने किते इत्थे ओ मोहम्मद अरबी का निज़ाम जो है वो ना चले। हाँ समझ आ रही? असी जेड़े ना बड़े मुकय्यद किस्म के गुलाम हाँ हजूर ना बड़ा प्यार है, लेकिन ना बड़ा एवें सिस्टमैटिक किस्म का चहती सिमती मोमेंटरी प्यार है, होना भी चाहिए, बड़ी अच्छी गल है, लेकिन ना साडा प्यार जो ना पता किस हिसाब का है, भाई जिस नबी दे आके असी मस्जिद च दुरूद पाक पढ़ने दुरूद पाक पढ़ने ते बाहर दुनिया च जाके जदों किसी का फैसला करना होवे या तुहाडे हक च कोई फैसला करे उदों भी मुहम्मद अरबी दा गुलाम बन के फैसला दिया कर। हुण जो गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, तो जो मौत सिर ते आवे तो जान बचाना फर्ज है। सीधे हो जाओ तुसीं सारे, हाँ इधर सीधे पलटियां मारनी है, गुलामी करनी है, टका के करनी है। तो ये इस्लाम के नाम पे आया है। गल नहीं समझ आ रही तो जितना भी अरब ममालिक भी तकसीम हुए हैं, भी नहीं पता अरब ममालिक तकसीम हुए हैं कोई मजहबी बुनियाद पे नहीं हुआ, ਉਹ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਰਦਾਰ ਆ, ਸਾਡਾ ਵੱਖਰਾ ਟੋਲਾ ਵੱਖਰਾ ਮੁਲਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਦੁਬਈ, ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਦੁਬਈ, ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਈ ਕਤਰ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਮਸਕਤ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਅਬੂ धाबी। समझ आ रही है? ये अरबी मुल्क तकसीम हुए ने इस्लाम की बुनियाद पर नहीं, कबीलों की बुनियाद पर, इस्लाम की बुनियाद पर। दो ही वतन है, एक मदीनातुल मुनव्वरा, एक पाकिस्तान। गल को समझ आ रही कोई नहीं आ रही तो पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान बनाने की खुशी करनी, अगे जी खुशी आ रही है ना वो इतों भी वड्डी करनी है। नहीं मैं थोड़ा जिहा टच ला छड्डा ना कि बिल्कुल जी पाकिस्तान जी ना मर जाना। हाँ ये अज भी खुशी करनी है, 12 रबी अव्वल नूं भी गज वज के झंडे भी लाने ने, उन्हां विच डंडे भी लाने ने, समझ आ रही ने, मिर्चां भी लानियां ने, तुसीं लानियां ने, लगनियां कईयां नूं ने। समझो है कि नहीं? जोश खताबत नहीं, फले खताबत नहीं, हकीकत है 14 अगस्त से बढ़कर 12 रबी अव्वल की खुशी क्यों मनानी है? 14 की इसलिए मनानी है कि पाकिस्तान आजाद हुआ, 12 रबी अव्वल को इसलिए मनानी है सारा जहान आजाद हुआ। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अपने मुल्क पाकिस्तान से भी वफादार रहने की तौफीक अता फरमाए और आमना के लाल हुसैन के नाना जान से भी वफादार रहने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।